આપણા સૌના પ્રભારી માર્ગદર્શક આદરણીય મુકુલ વાસનિકજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ, રાજ્યસભાના સાંસદ, આપણા સૌના માર્ગદર્શક આદરણીય શક્તિસિંહજી ગોહિલ જ્યારે આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, ત્યારે હું શક્તિસિંહજીને વિનંતી કરું કે આવો અને આજના કાર્યક્રમમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના તમામ બબ્બર શેર જેમને રાહુલ ગાંધીજીએ કીધા છે, આ તમામ બબ્બર શેરનું સ્વાગત કરો અને સ્વાગત પ્રવચન કરો. સૌ પ્રથમ હું શક્તિસિંહજીને વિનંતી કરું છું કે આદરણીય રાહુલ ગાંધીજીનું જે શિવજીની વાત છે એ શિવજીની મૂર્તિ દ્વારા રાહુલ ગાંધીજીનું શિવજીની મૂર્તિ અને સૂતરની આંટી દ્વારા સ્વાગત કરે. તમામ મિત્રોની વિનંતી કે પોતાના સ્થાન ઉપર જ્યાં ઉભા હોય ત્યાં તાત્કાલિક બેસી જાય. રાહુલ ગાંધીજીનું આદરણીય પ્રમુખ શ્રી શક્તિસિંહજી ગોહિલ મોમેન્ટો દ્વારા સ્વાગત કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ વિપક્ષના નેતા અમિતભાઈ ચાવડાને વિનંતી કરું કે તેઓ શાલ અને સૂતરની આંટી દ્વારા આપણા સૌના નેતા આદરણીય રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરે. ત્યારબાદ વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા શૈલેષભાઈ પરમાર મોમેન્ટો દ્વારા રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરશે અને અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ હિંમતસિંહ પટેલ પણ સૂતરની આંટી દ્વારા રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોએ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ઉપર જે કાયરતાપૂર્ણ હુમલો કર્યો, હું શક્તિસિંહજી ગોહિલ આપણા પ્રદેશ પ્રમુખશ્રીને વિનંતી કરું છું કે આવો અને સ્વાગત પ્રવચન કરો. શૈલેષભાઈ પરમાર દ્વારા શિવ હિ સત્ય એના મોમેન્ટો દ્વારા રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ગુજરાતની ગાંધી અને સરદારની ભૂમિ ઉપર રાહુલજીનું સ્વાગત છે. હું વિનંતી કરું આપણા પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી શક્તિસિંહજી ગોહિલને કે જેમણે તાકાતપૂર્વક ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ સરકાર અને પોલીસને ફરજ પાડી કે કોંગ્રેસ પક્ષની પણ એફઆઈઆર લેવી પડે. કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યકરો ઉપર જે અમાનવીય અત્યાચાર કરવામાં આવતો હતો તેની સામે તાકાતથી બોલવાવાળા આપણા પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી શક્તિસિંહ ગોહિલને હું વિનંતી કરું કે આવો અને રાહુલજીનું આ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ખાતે સ્વાગત કરો. એક વખત જરા જોરદાર મારા સાથે થઈ જાય. રાહુલ ગાંધી. અરે બબ્બર શેર કે છે આપણને રાહુલ ગાંધીજી, તો આપણો અવાજ તો જોરદાર જોઈએ ને. રાહુલ ગાંધી. રાહુલ ગાંધી. હું પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ વતી કોંગ્રેસ પક્ષના આ પરિવારના એક એક સભ્યશ્રીઓ વતી જનનાયક આપણા નેતા શ્રી રાહુલ ગાંધીજીનું આ એ ભૂમિ જે મહાત્મા ગાંધીજી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મભૂમિ અને જ્યાં જ્યોતિર્લિંગ આવેલું છે એવી આ ગુજરાતની ભૂમિ પર એક સાચા શિવભક્ત જનનાયક રાહુલ ગાંધીજીનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આપણે સાંભળી હતી સ્પીચ, જરા હાથ ઊંચો કરો તો પાર્લામેન્ટમાં. કોણે કોણે આખી સ્પીચ સાંભળી હતી? હાથ ઊંચો કરે જરા. આ સ્પીચ તમે સાંભળી, આ આખી સ્પીચ તમે સાંભળી, એમાં જેને લાગ્યું હોય કે આ સ્પીચના કારણે રાહુલ ગાંધીજીના હિન્દીઓનું ગૌરવ વધ્યું છે એ જરા બોલે કે રાહુલ ગાંધી જિંદાબાદ. આમાં થયું છે શું તમને ખબર છે? રાહુલ ગાંધીજીએ પાર્લામેન્ટમાં ભગવાન શિવ, દેવોના દેવ મહાદેવના દર્શન કરાવી દીધા. શિવ પુરાણને સાચું હિન્દુત્વ સમજાવ્યું એટલે ભાજપિયાના પેટમાં અને એટલે શું કર્યું? ઓલી નાની વિડીયો કાપી જેમાં શું કહ્યું હતું રાહુલજીએ કે હિન્દુ ક્યારે હિંસક ના હોય. આ તમે પીઠ્ઠું બનીને બેઠેલા હિન્દુઓના ઠેકેદાર બનીને બેઠેલાઓ હિંસા ફેલાવીને હિન્દુને બદનામ કરો છો, કહ્યું હતું ને. भैया माइक की मजा नहीं है, क्या कर रहे हो आप? ત્યારે
આપણે સૌએ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાની એ જવાબદારી છે. હું સલામ કરીશ કે જ્યારે કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર હલ્લા બોલવાની વાત થઈ તો બહાદુર કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓ દિવાલ બનીને કોંગ્રેસની ઓફિસની સામે ઉભા રહ્યા અને સલામ કરું છું. આ એ બબ્બર શેર છે કોંગ્રેસના. ભાજપવાળા હિંસા કરવા આવ્યા હતા, પણ એમને ખબર નથી કે આ એ વિચારધારા છે જે અંગ્રેજોની લાઠી ગોળીથી નહોતી ડરી, અને આ એ વિચારધારા મહાત્મા ગાંધીની આગેવાનીમાં લડી હતી. આજે આ જ વિચારધારા રાહુલ ગાંધીની આગેવાનીમાં લડી રહી છે. તો આ ગુજરાતમાં રાહુલ ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે ગુજરાતની જનતા ત્યારે હું આપ સૌને કહું છું કે કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં જીતશે, એ રાહુલ ગાંધીજીના શબ્દો, અને આપણા અહંકારથી નહીં. ગુજરાતીઓ આનાથી ગળે આવી ગયા છે, એટલે ગુજરાતીઓ કોંગ્રેસને જીતાડશે. રાહુલ ગાંધીજી ન્યાય માટે લડે છે, અને સમગ્ર ગુજરાતમાં જેને જેને અન્યાય થયો છે એ પરિવારો રાહુલ ગાંધીજીને મળવા આવ્યા છે, અને રાહુલ ગાંધીજી એમને મળવાના છે. આ ગુજરાતીઓના આશીર્વાદ આપણને જીતાડશે. જે 5 બબ્બર શેર પોલીસે જેમને પકડ્યા છે, કોર્ટે આજે પણ એમની ટીકા કરી કે તમારે જરૂર નહોતી તો વહેલા હું કામ લાવ્યા. એવા પરિવારના, એ જ આપણા બબ્બર શેરના પરિવારના સભ્યોને રાહુલ ગાંધીજી મળવાના છે. એ માટે રાહુલ ગાંધીજીનો આભાર માનું છું. આવા આપણા નેતા છે. વિશેષ તમારી અને રાહુલ ગાંધીજીની વચ્ચે નહીં લેતા, હું રાહુલ ગાંધીજીને જ વિનંતી કરું. એ પહેલા જરા 2 સૂત્રો થઈ જાય. राहुल गांधी, और जोर से राहुल गांधी. और राहुल गांधी जी से मैं विनती करूंगा कि आइए और हमें संबोधित कीजिए. मुकुल वासनिक जी, शक्ति सिंह गोयल जी, अमित चावड़ा जी, दीपक बाबरिया जी, शैलेश परमार जी, जगदीश ठाकुर जी, सिद्धार्थ पटेल जी, अमी याग्निक जी, लालजी देसाई जी, हिम्मत सिंह पटेल जी, जिग्नेश मेवानी जी, इंद्र विजय जी, इमरान खेडावाला जी, ललित भाई, लाला भाई पटेल जी, मतलब हमारे सारे के सारे सीनियर नेता और हमारे प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर टाइगर, आप सबका यहां मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं. पार्लियामेंट हाउस में आपने देखा होगा कि अजीब सी बात है, बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी. सही बात. शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने अडवाणी जी को रथ पे देखा था. कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी. इनकी शुरुआत वहां हुई. राइट, ठीक है. रथ यात्रा चली और पार्लियामेंट में मैं सोच रहा था
कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। अब उसका नतीजा बताता हूं। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गठबंधन के हैं, है ना। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, यह हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, यह हुआ क्या। और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है।
तो अगला स्टेप क्या है? अब इन्होंने क्या किया? अच्छा, अंदर की बात बताता हूं। अब यहां आया हूं, परिवार से बात हो रही, तो अंदर की इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे, आप अयोध्या में हारेंगे। आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए, आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में कितने से जीते? 1 लाख वोट से जीते। मतलब जान बचा के निकले हैं। सच्चाई है। जैसे मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा, हमारा काम, ये जो लगा रखा है मैंने आज, ये जो चिन्ह लगा रखा है, इसको क्या कहते हैं? अभय मुद्रा कहते हैं। ये आपका चिन्ह है, इसको भूलो मत। आप आज वापस जाओगे, अलग अलग धर्म के लोग हो आप, हर धर्म में यह चिन्ह आपको दिखाई देगा। गुरु नानक जी की फोटो देखिए, महावीर की देखिए, बुद्धा की देखिए। इस्लाम में भी, जैसे मैंने पार्लियामेंट में कहा, दुआ मांगी जाती है, दोनों हाथ से ऐसे मांगी जाती है। आप शिव जी की फोटो देखिए, उसमें आपको यह दिखाई देगा। और इसका मतलब है डरो मत, डराओ मत। और मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। आप देख रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, देखो 50% आप में से लोग, 50% आप क्या सोच सकते थे? मैं आपको पूछता हूं, आप क्या सोच सकते थे? चुनाव से पहले आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी? ना। आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी से जान बचा के निकलेगा? मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा, सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे, वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है, आपको डरना नहीं है। बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। दूसरा उदाहरण देता हूं, आप कांग्रेस पार्टी को जानते हो? हमारी पार्टी में कोई डरता है? कैसे मालूम?
हमारी पार्टी में दिल से बात कर देते हैं। बड़ा सा बड़ा हो, राहुल गांधी हो, हमारे पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी, मुझसे कहते हैं, मेरे कमरे में आके कहते हैं, राहुल जी ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा। कहते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, और मैं कहता हूं आपने सही बोला, इस बार मैंने ऐसे नहीं करना था, जो आप बोल रहे हो वैसे करना था। हम डरते नहीं है, ना हमारे कार्यकर्ता हमें बोलने से डरते हैं, ना हम अपनी कार्यकर्ता की बात सुनने से डरते हैं, ना हमारा कार्यकर्ता हमसे डरता है। अब देखिए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता, मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं, कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई, मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता है भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे, हमने कहा, देश से हमने कहा था डरो मत, डराओ मत, हमने कहा था। बीजेपी के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था भैया डर गए हम, जो करना है कर लो। तो आप अपनी हिस्ट्री समझो, जो डर की भावना होती है ना, वो आप में नहीं है, उनमें है। और इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नई कांग्रेस पार्टी बनेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, मैं गहरी बात बोल रहा हूं, मैं ऐसी आलतू फालतू बात नहीं करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बनी कहां थी, मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, जिन्होंने रास्ता दिखाया था। आप क्या सोचते हो, जब यहां अंग्रेज राज करते थे, क्या डर नहीं था? गुजरात के व्यक्ति ने कहा था, महात्मा गांधी ने देश को कहा कि देखो डरो मत, डराओ मत। और आग गुजरात से शुरू हुई थी। और आज अगर कांग्रेस पार्टी है, तो वो पार्टी, वो भावना, वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी। इसीलिए जब इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने डरो मत की बात करी, मगर एक शिकायत भी है। यह भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में कमियां नहीं है, ये कहना पड़ेगा। कमी क्या है? एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी, कहता है मुझे, राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप
कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। तो अब मेरा कहना है कि यह काम सीरियसली करना है। हम पिछले चुनाव में, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि हम बीजेपी से पिछले चुनाव में नहीं लड़े थे, ठीक से नहीं लड़े थे। उससे पहले चुनाव में 2017 में हम 3 महीने कह लो, 4 महीने कह लो, 4 महीने 3 महीने हम लड़े और नतीजा आपने देखा। आपने देखा, गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा, मैं बता रहा हूं आपको इनसाइड ट्रैक, मुझे बस में कहा कि राहुल जी, गुजरात में हमें 40 सीटें मिलेंगी। मैंने उनसे कहा 40 नहीं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और 16 सीट से हम चुनाव हारे। अब 3 साल हैं, 3 महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुंच गए थे। 3 साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उधर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, मानो ना मानो, आप में से 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे नहीं भैया नहीं होगा। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप लड़ जाओ और ये बाकी 50% बैठे हैं, उनकी माइंड बदल दो, नैया पार हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहां खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। आपने बहुत सहा है, बहुत लाठियां खाई हैं, बहुत अपमान हुआ है आपका, गालियां खाई हैं आपने। अब बहुत हो गया, अब इनको हमें सबक सिखाना है और हम इनको हराने जा रहे हैं। और नफरत से नहीं, मोहब्बत से आप देखना, मोहब्बत से हम इनको हराएंगे। कैसे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था, वो गुब्बारा जो था वो फट गया है, फटाक से वो फट गया है। आप सोचिए, पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी वहां बैठे, मैं यहां, और मैंने प्रधानमंत्री जी उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं, पता नहीं आप क्या हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से, तो अयोध्या कैसे हार गए? कैसे हार गए? तो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलॉजिकल, गुजरात की जनता बायोलॉजिकल, गांधी जी बायोलॉजिकल, हिंदुस्तान के किसान मजदूर सब लोग बायोलॉजिकल, और नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। स्पीकर सर ने मुझे कहा, ऐसे मत बोलिए,
मैंने कहा मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। स्पीकर बिल्कुल चुप हो गए। बात तो सही है, बात तो सही है। ये राहुल गांधी के शब्द थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द हैं, नॉन बायोलॉजिकल। अब सोचिए वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलॉजिकल समझता है, कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है? जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, मजदूरों का दर्द नहीं समझ सकता, डायमंड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका दर्द नहीं समझ सकता, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तो अब आपका काम है गुजरात को विजन देना, गुजरात के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को विजन देना कि भैया हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हिला के रख दिया था बीजेपी को, आपने देखा? वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजरात के लिए। गुजरात की जनता से मिलकर 1 लाख लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाया था। वैसे ही हम गुजरात में लाखों लोगों से पूछकर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाव पूरा दम लगा के लड़ेंगे और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़ के हटप्परे कर देंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां जगन्नाथ यात्रा हो रही है, आप सबको और जो यात्रा में भाग लेंगे आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और दिल से प्यार देना चाहता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। વિપક્ષના નેતા વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા અમિતભાઈ ચાવડાને વિનંતી કરું કે તેઓ આવે અને આભાર વિધિ કરે। ગાંધી સરદારના ગુજરાતમાં ડરો નહીં ને ડરાવો નહીં ના નારા સાથે કોંગ્રેસના જે કાર્ય, કોંગ્રેસની વિચારધારા સાથે આ ગુજરાતના લોકો માટે લડી રહ્યા છે, સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, એવા તમામ કાર્યકરોનો હોંસલો બુલંદ કરવા માટે ગુજરાતમાં અગ્નિકાંડ હોય, મોરબીના બ્રિજના પીડિતો હોય, સુરતના તક્ષશિલા કાંડના પીડિતો હોય, વડોદરાના મૃતકના પરિવારજનો હોય, એવા તમામ ગુજરાતમાં જેને અન્યાય થાય છે, જેની પર અત્યાચાર થાય છે, જેને ન્યાય માટે લડત લડે છે, એવા તમામ પરિવારોને સથવારો આપવા માટે એના લડતમાં કોંગ્રેસ એની સાથે છે એ વિશ્વાસ આપવા માટે કોંગ્રેસના કાર્યકરો ને આવનારા સમયમાં લડીશું ને જીતીશું એના માટે વિશ્વાસ સાથે એક તાકાત પૂરી પાડવા માટે જનનાયક રાહુલ ગાંધીજી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, ત્યારે આપણે સૌ ગુજરાતી વતી એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। રાહુલજીને પણ આપણે વિશ્વાસ આપીએ છીએ કે તમે જે દેશની પાર્લામેન્ટમાં વિશ્વાસ અપાયો છે, કોંગ્રેસનો એક એક કાર્યકર, એક એક ગુજરાતી જે આવનારા સમયમાં ડરો મત ના નારા સાથે જે લડાઈ લડવાનો છે એની સાથે મક્કમતાથી કોંગ્રેસનો કાર્યકર પણ લડશે। ફરીથી આપણા સૌના તરફથી રાહુલજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે કોંગ્રેસના કાર્યકરોનો હોંસલો બુલંદ કરવા માટે અને ગુજરાતના લોકોના દુઃખમાં ભાગીદાર થવા માટે અને આવનારા સમયમાં લડત માટેનો એક એલાન કરવા માટે, હોંસલો આપવા માટે આપણી વચ્ચે આવ્યા છે, ત્યારે આપણા સૌના તરફથી રાહુલજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ। एक बात मैं भूल गया कहना, आने से पहले मैंने अपनी बहन से कहा था कि देखो अगली बार मैं गुजरात जाऊंगा तुम्हें मेरे साथ आना होगा।